Hi friends, welcome to my channel. My name is Roshni Chelani and in this channel we talk about personal and professional growth. So आज का टॉपिक है how to deal with rejection. Before we go to the topic, मुझे ये बताना है कि I have dealt with rejection a lot of times and if you follow these 7 steps which is I'm going to be telling till the end, अगर आप ये 7 steps follow करते हो तो मैं गारंटी बोलती हूँ कि आपको rejection handle करने में बहुत आसानी होगी and at the same time you will be able to get the job because I'm going to be sharing some tips and tricks that you could do when you're facing rejections that can help you to get the job. So let's get started. सबसे पहले how does rejection make you feel? I don't know how you feel, but if I have to tell you how I feel, I sulk, I cry, I don't feel good about it. I have a lot of like frustration inside me and anger inside me ki why is this not happening? What am I doing wrong? What's going on? And how is somebody else able to do it? Like I easily compare myself with someone else who's able to do it and I'm not able to do it, which is not the right thing to do. And at the same time, it's a big hit on my self-esteem. It makes me feel not good about myself and it's just not a good place to be at. So what do we do about it is where the solution relies, right? We can't just really be in that feeling. I don't know how you feel. You can let me know in the comments. Let's keep this as a discussion kind of a thing rather than just a video. So let me know how you feel during rejection. But majorly, मेरा ऐसा मानना है कि मैं अपने आप को उस फेज में ज़्यादा रहने नहीं देती. So I do feel bad. I feel जैसे मैंने कहा जो भी नेगेटिव इमोशंस है मुझे सब फील एकदम एक धक्का लगता है ना दिल को कि यार ये नहीं हुआ. मुझे वो लगता है डेफिनेटली मुझे वो फील होता है एंड आई जस्ट लाइक गेट एंग्री कि ये क्यों नहीं हो रहा है मुझसे बट उसके बाद आई डोंट लेट माई सेल्फ स्टे इन दैट सो माई फर्स्ट सजेशन वुड बी कि वॉट एवर यूर फीलिंग राइट फर्स्ट जस्ट एक्सेप्ट इट ठीक है पहले तो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रहा है एंगर हो रहा है जो भी ट्राई टू आइडेंटिफाई द इमोशंस बिकॉज अगर इमोशंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो वी कैन एक्चुअली डिस्टेंट आवर सेल्फ फ्रॉम इट. So first identify what emotions you're feeling. For me, it's mostly frustration and anger. Like I'm not able to figure it out, like hitting a dead end kind of a thing. But I accept all those emotions. I accept all the emotions that are coming my way. I let myself feel all that. I, kind of like journal about it. But I let myself feel. First is that thing. So please let yourself feel that because if you try to resist it, it's gonna persist. So try to feel it, let it be, it's fine. Second is the most important thing. मैं जब अपने आप को ये फील करती हूँ तो मैं अपने आप को उस फेज में ज़्यादा रहने नहीं देती हूँ. ये जो फ्रस्ट्रेशन वाला फेज है और या जो भी मुझे फील हो रहा है उस फेज में नेगेटिव फेज में अपने आप को रहने नहीं देती हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू टेक माई सेल्फ टुवर्ड्स अ प्रोडक्टिव फेज. So I deliberately talk myself out of it. I talk myself positively कि हाँ क्या कर सकते हैं इस चीज़ के लिए. And इसमें I want to give you a small tool that you could use during for your rejection phase also. What you could do is एक strong mindset develop करना चाहिए. तो अभी जब हम रिजेक्शन में होता है ना तो इफ़ यू हैव अ वीक माइंडसेट वो इस तरह का होता है वेयर यू फील लाइक आई एम नॉट गुड इनफ आई एम नॉट गेटिंग द जॉब रिजेक्शन अगेन एंड यूर जस्ट बेसिकली फीलिंग आई एम नॉट लाइक आई एम नेवर गोइंग टू गेट अ जॉब. ये सारी जो नेगेटिव फीलिंग्स होती है वो सब बहुत ज़्यादा ही फील होती है. नाउ आई वॉन्ट यू टू गो टूवर्ड्स द स्ट्रॉन्ग माइंडसेट of how you talk to yourself. See, a lot of things हमारी लाइफ में जो भी आउटकम्स आते हैं a lot of things really depend upon how we talk to ourselves. तो जो भी ऐसे नेगेटिव इमोशंस है उसके बदले एक पॉजिटिव इमोशन रखने की कोशिश करिए. मतलब जस्ट ट्राई टू टॉक टू योर सेल्फ इन अ पॉजिटिव वे. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ यू फील कि आई एम अ फेलियर ट्राई टू टॉक टू योर सेल्फ दैट आई एम नॉट अ फेलियर. दिस वन इंस्टेंस डजंट रियली डिफाइन मी राइट. Second would be I'm not good enough. No, I'm really good enough. I've achieved so many things in my life, especially if you're doing masters in United States or anywhere in the world. You're studying or you're doing something in your life, right? That's why you're facing rejection. So you give yourself that credit कि मैं कुछ तो कर रही हूँ लाइफ में जो मैं फेल हो रही हूँ, right? कुछ लोग तो कुछ करते ही नहीं हैं, तो एटलीस्ट मैं आगे तो हूँ, right? उस तरह से सोचिए. I will not get the job versus I will get my dream job. Sometimes what can actually help is taking your name and calling out. कई बार मैं अपने आप से आप करके बात करती हूँ. रोशनी आप क्या करना चाहती हैं? आपको ऐसा लगता है कि सच में आप ऐसा नहीं कर पाएंगी? खुद को रिस्पेक्ट करो so really put yourself in that position where अच्छा हाँ I respect this person क्योंकि इस इंसान ने बहुत कुछ किया है. The relationship that you have with yourself is an eternal one. Something like nobody responds to me versus who can I talk to that can help me through this process. And then it would be nobody will hire me.
I know I'm an asset wherever I go, so I know I'm going to be hired by any company that I want to work for. कई बार when you scroll through your emails because you're like चलो कुछ तो जॉब का आ गया होगा, उसमें जब अनदर रिजेक्शन आता है तो यू रियली फील लाइक आई एम गोना सल्क हियर, लाइक यू फील लाइक अनदर रिजेक्शन. यार ATS ने अगर तुम्हें कई बार ऐसे रिजेक्शन ईमेल भेज दिया तो 2 मिनट में बता दिया कि मैं इस जॉब के लिए लायक नहीं हूँ. सो यू फील लाइक दैट फ्रस्ट्रेशन ऑफ अनदर रिजेक्शन, राइट? उस वक्त रियली ट्राई टू काम योर सेल्फ डाउन एंड काइंड ऑफ फील लाइक okay, rejection, you have no power over me because I know I am on my path towards getting a job. इस वक्त अपने आप को एक नेगेटिव माइंडसेट से पॉजिटिव माइंडसेट पे लेके जाओ. सो फर्स्ट एक्सेप्ट करो, सेकंड ट्राई टू टेक योर सेल्फ फ्रॉम द नेगेटिव टुवर्ड्स अ पॉजिटिव माइंडसेट. नाउ दिस इज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी वेयर द रियल टूल्स कम इनटू पिक्चर. इम्प्रूव योर स्ट्रैटेजी एंड अपनी स्ट्रैटेजी को ऑब्जेक्टिवली देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ, राइट? मेरा कितना टाइम एप्लीकेशंस में जा रहा है, कितना टाइम लोगों से बात करने में जा रहा है, कहाँ पे मैं गलत कर रही हूँ, राइट? और ऐसा भी हो सकता है कि यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग, एंड फॉर दैट व्हाट आई सजेस्ट इज बेस्ट है कि किसी मेंटोर से बात कीजिए या कोई आपसे जो एल्डर है या एलुमनाई है. तो आई हैव सम टिप्स टू इम्प्रूव योर स्ट्रैटेजी एंड दैट इज नंबर 1, रेज्यूमे. प्लीज़ ट्राई टू वर्क ऑन योर रेज्यूमे. अगर आपका रेज्यूमे कहीं पे ATS पे जल्दी रिजेक्ट हो रहा है तो देखो हाउ यू कैन इम्प्रूव इट. रेज्यूमे वर्डेड इज वन ऑफ द वेबसाइट दैट कैन हेल्प यू टू फाइंड कीवर्ड डेंस लाइक थिंग्स ऑफ योर प्रोफेशन एंड देन यू कैन पुट दैट ऑन योर रेज्यूमे. सो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है. सेकेंड इज लिंक्डइन प्रोफाइल को भी डेंस करो. इफ़ यू आर एक्टिव ऑन लिंक्डइन देन यू नो कि इफ योर लिंक्डइन प्रोफाइल, आई हैव सीन दिस पीपल डूइंग दिस मिस्टेक सो मेनी टाइम्स, देयर एक्सपीरियंस सेक्शन डजंट इवन हैव देयर प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी में की हैं, बैचलर्स या मास्टर्स में. अगर तुम अपने प्रोजेक्ट्स ही नहीं रख रहे हो तो एक रिक्रूटर या हायरिंग मैनेजर को पता कैसे चलेगा कि यार दिस पर्सन हैज़ द स्किल सेट. एंड सेकेंडली उसके पास सिर्फ 7 सेकेंड्स होते हैं और वो लोग अगर सब कुछ देख रहे हैं और उनको दिख भी नहीं रहा है कि तुमने क्या किया है, तो हाउ आर दे गोना मेक दैट जजमेंट? सेकेंड इज, अगर आप सब ये सारी चीज़ें रखते हो प्रोजेक्ट्स, योर प्रोफाइल इज ऑलरेडी गोना बी कीवर्ड डेंस एंड इट्स गोइंग टू राइज अबव योर कॉम्पिटिटर्स हु आर अप्लाइंग फॉर द सेम जॉब. जो लिंक्डइन पे होता है कि यू आर अमॉन्ग टॉप applicants or not, right? Top 10% applicants. Try to reach that, right? So that's another thing that you could do. Then talk to people who recently got the job. And I think people miss out on this. There's a gem of information that is available if you talk to people who recently got the jobs. Now, what I mean by that is not just the jobs, like not just in your friend circle. तुम LinkedIn पे जाके भी देख सकते हो यार, like you recently hired दिखते हैं और वो जो जिस रिक्रूटर्स के पास भी गए वो भी सब दिखता है. तो उनसे बात करने की कोशिश करो. ट्राई टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप. जस्ट डोंट गो एंड आस्क, बट जितना आप उनसे बात करो, उन्होंने भी 3-4 इंटरव्यूज़ दिए होंगे फिर जाके उनका लगा होगा. बाकी जो 3 इंटरव्यूज़ उन्होंने दिया और उनका नहीं लगा, उनके रिक्रूटर्स का नाम पूछो. देयर सो मेनी थिंग्स दैट यू कुड डू ओवर हियर. देन गो टू द करियर सेंटर. उनका दिमाग खाओ. यू पे देम सो मच, राइट? सो यू माइट एज वेल गो टू देम एंड टेल देम कि व्हाट कैन आई डू विद माई रेज्यूमे? डू यू हैव सम एलुमनाई दैट आई कैन टॉक टू? रेज्यूमे हमें मतलब करियर सेंटर में देयर आर पीपल हु कैन क्रिटिक योर रेज्यूमे. देयर इज लाइक अ करियर सेंटर POC, राइट? तो उन सब का नेटवर्क, उनके नेटवर्क को थोड़ा लाइक bank on that, right? So try to do these things. Then alumni को contact करो. You can do that through LinkedIn also, right? That's one of the other things. Not just that, अपने टीचिंग असिस्टेंट के पास चले जाओ. उसका नेटवर्क जो है वो तुम्हारे से 2-3 साल बड़े लोगों का ही होगा, तो उसको एक्सप्लोर करो. See, like these are small things that you could do, but people miss out on that. Recruiters को contact करो from LinkedIn and ask them the way I said. You can contact them and warm referrals लो. Warm referrals का मतलब basically यही है कि instead of actually just cold messaging people and getting referrals from them, you try to establish a relationship with them and then do that. The crux of what I'm trying to say, अगर मुझे rejection hit होता है ना, तो मैं बहुत सारे actions लेती हूँ सोच के कि यार इसको कैसे इस स्टेट से मैं निकल सकती हूँ. और मैं अपने आप को दिखाती हूँ, किसी को दिखाने के लिए नहीं, मैं अपने आप को दिखाती हूँ कि यार रोशनी ये तो हो सकता है, कुछ नहीं, बस थोड़ा लाइक स्ट्रैटेजी का कमाल है, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं इसमें जो करने की है, उसके बाद मैं डेफिनेटली कर सकती हूँ. So this is what I would say over here. Next example I think this is very important to give this example. You might be knowing Elon Musk, right? The CEO of Tesla. So Elon Musk की बात करते हैं तो if you know about him, उसे भी rejection मिला था. He was getting bankrupt and he went to Tim Cook and he asked him कि मतलब he was trying to get a meeting with Tim Cook so that Tim Cook can help him, lending him some money about Tesla. और टिम कुक उनसे मिले भी नहीं थे. एंड ही ओपनली स्पोक अबाउट इट ऑन हिज ट्विटर.
And socho the level of rejection, and today he is the richest man on this planet, right? And he does so many things. He's actually the coolest CEO, I think. So उसने कैसे rejection handle किया? जो भी जिसकी भी बात कर रहे हो ना, जो भी CEOs है, जो भी top positions पे है, और कहीं पे भी life में rejections तो मिलने ही वाले हैं. So the way you handle it defines, you know, what comes next for you. Fourth tip, patience. पेशेंस का मतलब ये होता है कि योर एबिलिटी टू हैंडल, यू नो, योर एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेटबैक्स एंड स्टिल एन्जॉय लाइफ. यू नो, फॉर एग्जाम्पल, अभी यू कैन नॉट बी मिजरेबल अगर तुम्हें रिजेक्शन मिला है तो, राइट? यू माइट बी फीलिंग बैड, बट यू कैन नॉट जस्ट डिपेंड योर हैप्पीनेस ऑन दैट वन थिंग, राइट? देयर सो मेनी गुड थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन लाइफ. सो आई वुड डेफिनेटली से कि अगर आपको बुरा लग रहा है उस वक्त कि हाँ यार मुझे क्यों नहीं मिला, तो अपने आप को ये रिमाइंड करना, इसी वीडियो पे आके वापस देखना और बोलना कि यार पेशेंस, यू नो, वो हिंदी में कहते हैं ना श्रद्धा एंड सबूरी, राइट? सो जस्ट थोड़ा पेशेंस एंड थोड़ा फेथ रखना है इस फेज में. जस्ट एंकर दिस वीडियो इफ़ यू वांट टू वॉच इट अगेन एंड अगेन एंड सी कि हाँ यार थोड़ा पेशेंस रखूंगी तो आ जाएगा, राइट? दूसरा है कि सपोर्टिव कम्युनिटी एंड फ्रेंड्स, विच इज़ द फिफ्थ वन. मेक श्योर दैट यू हैव सम रियली पॉजिटिव पीपल अराउंड यू. ड्यूरिंग द जॉब सर्च देयर आर लॉट ऑफ नेगेटिव पीपल. काइंड ऑफ ट्राई टू फिल्टर देम आउट एंड जस्ट मेक श्योर कि हाँ तुम्हारे पास ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप लोग अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं. दैट कैन, you know, take the pressure off for you. Sixth would be hobby that gives you joy. I love doing a lot of things. तो जब भी अगर मुझे कुछ ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेशन लगता है तो मैं ऐसा नहीं है कि उसी चीज़ पे लग जाती हूँ. Of course मैं जो भी steps कर सकती हूँ वो करती हूँ, but at the same time I have different things that I keep on doing in my life that makes me really happy, and there's joy in other things, doing other things too. तो समझो अगर जिस दिन रिजेक्शन ईमेल आया है तो उस दिन 1-2 घंटा कुछ और कर लो जो पसंद है. पेंटिंग कर लो, सिंगिंग कर लो, यू नो, इफ़ यू लाइक प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट, डू समथिंग लाइक दैट. go to a friend, go for a walk to the park, something like that. This brings me to my last point, which is the 7th point, and I feel this is the most important point, more than even the 3rd point. This is my personal philosophy. So that is like as within so without, which basically means कि nothing outside of me can make me happy. As much as I think that ये चीज़ मुझे मिल जाएगी तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगी, या ये चीज़ मुझे नहीं मिल रही है तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे ये पता है कि ये मिल जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट होने वाला है, मेरा दिमाग बोलेगा कि अच्छा ये दूसरी चीज़ करते हैं या ये दूसरी चीज़ करते हैं, राइट? और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि जॉब मिलने से लोगों को बहुत खुशी मिल जाती है, तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जॉब है और वो नहीं खुश हैं, राइट? तो ट्राई टू सी कि यार देयर इज समथिंग मोर बिगर, राइट, इन टू डू इन लाइफ. लाइक ऐसा एक छोटी छोटी चीज़ों पे हम ऐसे सैड नहीं हो सकते हैं. तो अगर आउटसाइड वर्ल्ड पे जो तुम चाहते हो वो नहीं हो रहा है ना, तो ट्राई टू गो इनसाइड एंड सी कि इनसाइड में मैं क्या चेंज कर सकती हूँ. यू नो, कुड बी योर स्ट्रैटेजी, कुड बी हैविंग मोर पेशेंस, कुड बी लाइक टॉकिंग टू एलुमनाइज. सो रियली ट्राई टू टेक केयर ऑफ योर इनर वर्ल्ड. I believe in law of attraction. I've already said so many times in this channel. मैं अपने आप को फील करती हूँ कि मुझे ये जॉब है, और मैंने किया था. जब मुझे फॉल्स इंटर्नशिप चाहिए थी तो मैंने यही सोचा था कि आई ऑलरेडी हैव द जॉब, ऐसे मैंने प्लान किया था. सो मेक श्योर दैट यू डू दैट. So this brings me to the end of the video, and now I want to basically say a very important point over here. मैंने अब ये सोचा है कि जब भी मैं कोई चीज़ लिखती हूँ तो मुझे ज़्यादा रिटेंशन रहता है, लाइक मैं उसको ज़्यादा अच्छे से याद रख सकती हूँ. तो लेट्स मेक दिस अ पॉइंट कि हम इस चैनल पे आप जो भी सीखते हो मेरे वीडियो से, तो प्लीज़ इफ आई टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक दीज वीडियोज़. If you really like something from this video, if you learn something from this video, try to write something in my comment section, ताकि जब मैं इस वीडियो को देखूं तब मुझे पता चले अच्छा लोगों ने कुछ सीखा है. You could just simply write like, hey Roshni, I loved this technique and I learned this from this video. That way, you know, not just this video is jam packed with good information, but also you know, the comment section, कोई अगर आप भी कभी आते हो बाद में, अगर 10 comments देखते हो, 10 comments में 10 लोगों ने कुछ अलग अलग सीखा होगा, you would also know कि अच्छा हाँ यार comments भी जो comment section भी है information rich है. So let's do that, and I will feature one of the best comments in my next video or on my Instagram channel or on my LinkedIn. Mostly Instagram story pe I'll be sharing that this was the best comment. So if you would like to be featured, please comment. I would really love that. And like, comment and subscribe. Thank you so much. Bye.